Hello everyone, I am Renu. In this video, I am going to explain you chapter first, 3 questions from Honeycomb for class 7. Now let us start our chapter first, 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. किसी राजा के मन में विचार आया कि वह अपने किसी भी काम में असफल नहीं होगा अगर उसे 3 प्रश्नों की जानकारी हो. These 3 things were, वे 3 चीज़ें थीं. What is the right time to begin something? कि किसी भी काम को प्रारंभ कब किया जाए. Which people should he listen to? किन लोगों की सलाह पर उसे ध्यान देना चाहिए. What is the most important thing for him to do? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए राजा ने अपने दूतों द्वारा राज्य भर में ये संदेश भेजा कि जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे वह बहुत बड़ा पुरस्कार देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. अनेक बुद्धिमान लोग राजा के पास आए पर उन्होंने उसके प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए. In reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable. पहले प्रश्न के उत्तर में बुद्धिमान लोगों ने राजा से कहा कि उसे एक समय सारणी बना लेनी चाहिए and then follow it strictly, और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए. Only in this way, केवल इस प्रकार, they said, उन्होंने कहा, could he do everything at its proper time, कि वह अपने सही समय पर सारे काम कर सकेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. वहीं अन्य लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने का सही समय पहले से निर्धारित करना असंभव है. The king should notice all that was going on. राजा उन सभी बातों पर ध्यान दे रहा था जो चल रही थी. Avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time. राजा सभी बातों पर दृष्टि रखे हुए था. मूर्खतापूर्ण अमोद प्रमोद से बचें तथा वही काम समय पर करने में मदद करें. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. यह आवश्यक था क्योंकि बिना किसी भी मदद के वही लोगों ने कहा. Yet others said that, वही अन्य लोगों ने कहा, the king needed a council of wise men, कि राजा को एक समिति बना लेनी चाहिए. बुद्धिमान लोगों की समिति बना लेनी चाहिए. Who would help him act at the proper time, जो उसको सही समय पर काम करने में मदद करें. This was because one man should find it impossible to decide correctly. यह आवश्यक था क्योंकि बिना किसी की मदद लिए किसी भी एक व्यक्ति के लिए सही निर्णय लेना असंभव होता है. Without helping from others the right time for every action, कि वह हर समय पर सही काम कर सके. Now see the next paragraph. But then others said that there were some things which could be urgent. पर कुछ लोग बोले कि कुछ काम ऐसे होते जिन्हें तुरंत करना आवश्यक होता है. These things could not wait for decision of the council. ये चीज़ें समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं. In order to decide the right time for doing something, किसी काम को सही समय पर उचित समय पर करने के जानने के लिए It is necessary to look into the future. तो हमें भविष्य की जानकारी होना जरूरी है. And only magician could do that. और ये काम केवल जादूगर ही कर सकता है. The king therefore would have to go magician. इसलिए राजा को जादूगर के या मैजिशियन के पास में जाना चाहिए. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार अति आवश्यक हैं. Others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अन्य ने कहा कि पंडित का सुझाव दिया, कुछ ने डॉक्टर को प्राथमिकता दी और कुछ ने सैनिक का सबसे अधिक महत्व दिया. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet other religious worship. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ एक ने विज्ञान बताया, अन्य ने युद्ध को चुना और अन्य लोगों ने धार्मिक कार्य को महत्वपूर्ण बताया.
As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि सभी प्रश्नों के जवाब उसे एक उत्तर एक समान नहीं थे, राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice to a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसलिए इसकी बजाय राजा एक सन्यासी की सलाह लेने का निर्णय किया जो अपने ज्ञान के लिए फेमस था. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. सन्यासी एक जंगल में रहता था और वह कभी भी उससे बाहर नहीं आता था. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल. उसको केवल आम व्यक्तियों से ही वह मिलता था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. और इसलिए राजा जो है साधारण वस्त्र पहन लेता है. बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और हर्मिट की यानी साधु की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले ही राजा अपने बॉडीगार्ड को छोड़ देता है और साथ में अपने घोड़े भी छोड़ देता और वह अकेले ही वहां जाता है. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट. जैसे ही राजा साधु की झोंपड़ी के पास आता ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो राजा देखता है कि सन्यासी जो है साधु जो है अपने घर के बाहर क्यारियों को खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग. सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और खोदने का काम जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. साधु जो सन्यासी जो था वो बूढ़ा था और कमज़ोर भी था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली. जैसे कि वो काम कर रहा था अब वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तेजी से सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. राजा सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू. मैं आपके पास आया हूँ. वाइज हर्मिट यानी सन्यासी. टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. मैं आपसे 3 प्रश्नों के जवाब पूछने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. वो अपना पहला प्रश्न पूछता है कि मैं काम को करने के लिए सही समय का पता किस प्रकार लगा सकता हूँ. हु आर पीपल आई नीड मोस्ट. वे कौन लोग हैं मुझे जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता है. एंड हु व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. साधु ने राजा के प्रश्नों को सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वह जमीन को खोदता रहा. यू आर टायर्ड. आप थक गए हैं. सेड द किंग. राजा ने कहा. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. आप मुझे अपनी कुदाल दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट. धन्यवाद. राजा को कुदाल देते हुए सन्यासी बोला. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और फिर वह साधु उस जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds. जब राजा 2 क्यारियाँ खोद लेता है. He stopped and repeated his question. वह रुकता है और अपने प्रश्नों को दोहराता है. The hermit gave no answer but stood up. साधु उसे कोई जवाब नहीं देता और खड़ा रहता है. Stretching out his hand for the spade. वो अपनी कुदाल को आगे लिए हाथ फैला के खड़ा रहता है. And said और कहता है, now you rest and let me work. अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. But the king did not give him his spade and continued to dig. राजा ने उसे अपनी कुदाल नहीं दी और लगातार वह काम करता रहा. 1 hour passed. 1 घंटा गुजर गया. Then another. तब दूसरा भी. The sun went down behind the trees. और सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया. And at last the king stuck the spade into the ground and said. अंत में राजा ने अपनी कुदाल को जमीन पे जमाया और बोला. I came to you wise man. मैं तुम्हारे पास आया हूँ ओ ज्ञानी पुरुष. For an answer to my questions. अपने प्रश्नों के उत्तर पता करने के लिए. If you can give me no answer. यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते. Tell me so and I will return home. तो मुझे बता दीजिए मैं अपने घर लौट जाऊँगा. Here comes someone running said the hermit. साधु ने कहा कि यहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर भागता हुआ आ रहा था. His hands were pressed against his stomach.
from which blood was flowing. वह उसने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था जिससे वह खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit, और राजा और साधु ने The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब राजा और साधु ने उसके कपड़े हटाए तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा घाव बना हुआ था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उस घाव को अपने रुमाल से ढक दिया और खून का बहना रुका. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. पर खून का बहना रुका नहीं. राजा ने पुनः घाव की मरहम पट्टी की और तब तक खून का बहना बंद नहीं हो गया. वो बार बार अपने रुमाल को धो धो के उसके घाव पे रख रहा था जब तक कि उसका खून का बहना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब उस व्यक्ति की हालत कुछ सुधरी. उसने पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड gave it to him. राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आया और पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम, और इस समय तक, द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अब तक सूरज छिप चुका था और हवा भी ठंडी बह रही थी. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा और साधु की सहायता से उस दाढ़ी वाले आदमी को वो अंदर कमरे में लाए और उसको बिस्तर पर लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और शांत लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. अब राजा जो था वो चला भी था और उसने बहुत मेहनत का काम भी किया था तो वह भी थक गया. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और वह थक गया और वहीं फर्श पर सो गया और पूरी रात सोता रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember when he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वह जागा उसे कई मिनट बाद याद आया कि वह कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को देखा तो उसने कहा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, सेड द किंग. मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं है, राजा बोला. यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारे एक शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की शपथ ली है. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, तुमने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मुझे पता था कि आप अकेली सन्यासी से मिलने गए हैं और मैंने निश्चय कर लिया था कि जब आप लौटेंगे तो आपका काम तमाम कर दूंगा. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, दिन गुजर गया लेकिन तुम नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छिपे स्थान से बाहर आया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. जैसे ही मैं अपनी छुपी जगह से बाहर आया तो मेरी भेंट आपके अंगरक्षक से हो गई. उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड. मैं वहाँ से बचकर भागा. आपने मेरे घाव की मरहम पट्टी की, यदि आप नहीं होते तो मैं मर गया होता. आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की कोशिश की, इच्छा की, कामना की. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया. नाउ इफ़ आई लिव, यदि आज मैं जिंदा हूँ, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आई विल सर्व एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपकी सबसे वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी, और मैं अपने बेटों से भी आपकी ऐसे ही सेवा करने के लिए कहूँगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए.
द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। और राजा को अपने शत्रु से इतनी आसानी से मैत्री हो गई तो वह बहुत प्रसन्न था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसको एक मित्र के रूप में जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, और राजा ने न केवल उसको माफ़ किया बल्कि उसको अपने नौकर तथा डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजा। उसने उसकी संपत्ति भी वापस करने का उसको प्रॉमिस किया। लिविंग द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उसने बाहर आकर सन्यासी को खोजा, झोंपड़ी से बाहर आकर उसने सन्यासी को खोजा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। वहाँ से जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की इच्छा हुई। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। सन्यासी घुटनों के बल बैठा क्यारियों में जो पिछले दिन खोदी गई थी उसमें बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं जाने से पहले अंतिम बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. राजा ने साधु ने, तुम्हें तो पहले ही अपने उत्तरों को उत्तर मिल चुका है। सन्यासी अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और राजा के सामने खड़ा हुआ था। झुके हुए उसने राजा की ओर दृष्टि डाले हुए कहा, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। आपका क्या मतलब है। मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि कल तुमने मेरी दुर्बलता पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वह आदमी तुम पे आक्रमण कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तुम्हारी इच्छा थी और तुम मेरे साथ यहाँ पर रुके रहे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी मदद करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, और बाद में वह व्यक्ति जो हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो था जब तुम उसके लिए उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, यदि तुमने उसका उपचार नहीं किया होता तो वह तुमसे बिना शांति स्थापित किए इस दुनिया से चला जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वह आप तुम्हारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, याद रखो, देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय वह है, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, अब जो कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में हम कुछ भी करने की स्थिति में होते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो विशेष क्षणों में आपके साथ रहता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। एंड विदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम उस व्यक्ति से कभी मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की सहायता करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा गया है। सो स्टूडेंट,
I hope you understand this chapter. I hope you like this video and watch my next video. Like and subscribe this video. Thank you.